ہم اس وقت یوگوسلاویا پر پرواز کر رہے ہیں۔ جہاز کو زیگریب کے ہوائی اڈے پر اتار دو اور تیل بھرنے کا بندوبست کرو۔ یہ حکم ابو عمل کی طرف سے کیپٹن والٹر کلاسن کو ملا تھا۔ والٹر کلاسن نے جھلاتے ہوئے کہنا چاہا، مجھے ساری زندگی مشرقی یورپ کے کسی فضائی مستقر پر اترنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ابو عمل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جو ہوں تمہیں بتانے اور سمجھانے کے لیے، فکر کس بات کی ہے؟ والٹر کلاسن ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ خدا جانے یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ کیا مجال جو 1 منٹ کے لیے اس نے کسی بھی نفسیاتی یا ذہنی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو۔ انہیں فضا میں چکر کاٹتے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور جہاز کی ٹینکیاں خالی ہونے لگی تھیں۔ شاید قبرص سے انہیں تیل ہی اتنا ملا تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ والٹر کلاسن سے پہلے ابو عمل نے لگا لیا تھا۔ اس دوران ان لوگوں نے جہاز کے مسافروں پر مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسٹوارڈ کے فرائض سنبھال لیے تھے اور اپنی مدد کے لیے اکانومی کلاس سے 2 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، جو مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء بہم پہنچا رہی تھی۔ جہاز کے عملے کو ان لوگوں نے فرسٹ کلاس میں چپ چاپ بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے پابند کر دیا تھا۔ زیگریب کے ہوائی اڈے پر اترنا والٹر کلاسن کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا۔ اس درمیان اسے جہاز کے 3 انجن بند کرنے پڑے اور صرف 1 انجن پر اس نے لینڈ کیا۔ کوئی معمولی اعصاب کا پائلٹ ہوتا تو جہاز کریش ہو جاتا۔ یوگوسلاویا کی حکومت نے انہیں صرف اس شرط پر اترنے کی اجازت دی تھی کہ وہ جہاز میں تیل بھرنے اور اشیاء خورد و نوش مہیا کرنے کے بعد اسے 1 لمحے کے لیے اپنی سرزمین پر رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سارا عمل آدھ گھنٹے میں پورا ہو گیا۔ اس درمیان ابو عمل نے اپنی دھمکی پھر ریکارڈ کروائی تھی اور جرمن حکام کو باور کروایا تھا کہ وہ محض اسرائیلی حکومت کی خوشنودی کے لیے بے گناہ مسافروں کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جرمن حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور درخواست کی تھی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ کے درمیان نہ آئے۔ جہاز ایک مرتبہ پھر یوگوسلاویا کی فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ابو عمل نے اسے ایک خاص ایریا ہی میں اڑتے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح والٹر کلاسن کے ذہن پر لپکا۔ اگلے ہی لمحے وہ لفتھانسا ایئر لائن کے چیئرمین ہربرٹ کلیمن سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے کلیمن کو باور کروا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سوائے ان کے ساتھیوں کی رہائی کے اور کوئی عمل مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو جہاز فضا میں پھٹ جائے گا۔ اس نے کلیمن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کی ساکھ پر داؤ نہ لگائے اور جرمن حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ تسلیم کریں۔ ہربرٹ کلیمن کا رابطہ بیک وقت والٹر کلاسن اور جرمن حکومت کے ذمہ داروں سے قائم تھا۔ جرمن ایئر لائن کا چیف ہونے کے ناطے اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ ایک تو اپنی ایئر لائن کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف جرمن حکومت کے وقار کا سوال تھا۔ خدا جانے یہ کیسے ہائی جیکر تھے جو سوائے پیٹرول لینے کے اور کسی بھی صورت میں جہاز زمین پر اترنے نہ دیتے۔ اگر وہ زمین پر کچھ دیر ٹھہرتے تو ان سے نمٹنے کے بہت سے چانسز ہو سکتے تھے۔ این ممکن تھا کہ کمانڈو کارروائی کا موقع مل جاتا یا پھر ان لوگوں سے سودے بازی کی جا سکتی، کوئی نفسیاتی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، کچھ بھی ممکن تھا۔ لیکن یہ لوگ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے؟ سوائے اپنا پیغام ایک مرتبہ نشر کرنے کے انہوں نے ابھی تک ذمہ دار حکام سے کسی بھی ملک میں بات کرنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ صرف پائلٹوں کے ذریعے دباؤ ڈال رہے تھے۔ عجیب مصیبت تھی، نہ تو یہ لوگ زمین پر اترتے تھے نہ کسی سے بات کرنے کو تیار تھے۔ انہیں ہر صورت مثبت جواب چاہیے تھا۔ ہربرٹ کلیمن نے آخر جرمن چانسلر سے کہہ دیا، جناب والا، جہاز مسلسل 24 گھنٹے پرواز نہیں کر سکتا، اس کے انجن بھی جواب دے سکتے ہیں اور اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہاں میں جواب سنے بغیر جہاز میں تیل ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے زیگریب میں بھی جہاز کو 1 انجن پر اڑانا پڑا تھا۔ خدا را سینکڑوں انسانوں کی جان داؤ پر نہ لگائیے۔ چانسلر نے بھی سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال مسافروں کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کلیمن نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوسری لائن پر والٹر کلاسن کے لیے پیغام دے رہا تھا کہ جرمن حکومت نے دونوں قیدیوں کو رہا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آرام دہ آفس کے اس حصے میں موجود تھا جہاں کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ یہاں 5 منٹ رک کر اپنے اوسان بحال کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے تھوڑی دیر بعد بویریا سے قیدیوں کے ہمراہ ایک دوسرے جہاز پر اس جگہ جانا تھا جہاں ہائی جیکروں کی طرف سے ان قیدیوں کو پہنچانے کا حکم ملا تھا۔ وسکی کے ایک پیگ نے اسے خاصا سکون دیا تھا اور اب وہ اپنی
अपने रिटायरिंग रूम का बगली दरवाजा खोलकर उस तरफ मौजूद बाग की खुली हवा में चंद लंबे लंबे सांस लेकर अपना ज़हनी दबाव दूर करके खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा था। जर्मनी के शहर बॉन से उसे अपने निजी छोटे जहाज में बवेरिया जाना था, जहां एक और जहाज पहले से तैयार था जिसमें कैदियों को लेकर जाने का मंसूबा तय पाया था। अभी उसने अपने दफ्तर से कदम बाहर निकाला ही था कि उसकी सेक्रेटरी हाथ में कॉर्डलेस फोन पकड़े उसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। शायद कोई अहम कॉल थी, वरना उसे कम से कम इस वक्त डिस्टर्ब न किया जाता। मिस्टर क्लेमेन। दूसरी तरफ से आवाज की बजाय सांप की फुनकार सुनाई दे रही थी। खुदा जाने आवाज में कैसा कहर छुपा था कि एक मर्तबा तो क्लेमेन का दिल जोर से धड़क कर रह गया। उसने फौरन अपनी हालत पर काबू पाकर पूछा, कौन हो तुम? आगे से आवाज आई, मैं जो कोई भी हूँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर कैदियों की रिहाई में तुम्हारा हाथ शामिल हुआ तो दुनिया के किसी भी कोने में तुम हमारी दस्तरस से बच नहीं सकोगे। क्लेमेन ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? आगे से आवाज आई, क्लेमेन, हम मौत के फरिश्ते हैं, डेथ स्क्वाड। उसके साथ ही फोन बंद हो गया। अपनी सेक्रेटरी को फोन वापस थमाते हुए हर्बर्ट क्लेमेन की रीढ़ की हड्डी में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। डेथ स्क्वाड की धमकी खाली खूली धमकी नहीं थी। वो यहूदियों की उस खूंखार तंजीम से बखूबी आगाह था और जानता था कि ये लोग कभी अपने मुजरिमों को माफ नहीं करते। लेकिन उसने सोचा, वो तो उनका मुजरिम नहीं, उसने फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया, वो तो अब भी अपनी हुकूमत के फैसले का पाबंद है। फैसला बहरहाल जर्मनी की गवर्नमेंट ने करना था। उसे तो अपनी कंपनी की साख और मुसाफिरों की जान अजीज थी, जिसको बचाने के लिए लुफ्तांसा के चेयरमैन की हैसियत से वो हर मुमकिन इक़दाम करने का इखलाकी, इंसानी और कानूनी तौर पर पाबंद था। बॉन से बवेरिया तक उसका सफर बड़ा अजियतनाक गुजरा। बवेरिया के हवाई अड्डे पर जर्मन इंटेलिजेंस चीफ माइकल गॉड उसका मुंतजिर था। माइकल ने उसे हवाई अड्डे पर ही एक अलग कमरे में मुख्तसर ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि जर्मन हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश यही है कि दोनों कैदी इन लोगों को न सौंपे जाएं। इसके लिए उन्हें हर्बर्ट क्लेमेन का अमली ताउन दरकार होगा। अगर ऐसा नागुज़ीर हुआ तो फिर यह हिदायत भी मौजूद है कि किसी मुसाफिर की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जाएगा। बवेरिया का जेल कोई आम जेल खाना नहीं था। यहाँ कैदियों को खुसूसी इंतजामात के तहत पाबंदे से लासिल रखा जाता। इस जेल में दुनिया भर की इंतहा पसंद तंजीमों के वो लोग बंद थे जिन्हें जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था। इनके अलावा खतरनाक कातिल, ड्रग स्मगलर और नामवर डकैतों को यहाँ रखा जाता। इस जेल का इंतजाम जर्मन पुलिस के एक खुसूसी शोबे को सौंपा गया था। जेल के दूर दूर कोई आबादी नहीं थी और उस तरफ आने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगरानी की जाती। जहाज को अगवा हुए 8 घंटे हो चुके थे जब जेल के बड़े दरवाजे से दोनों कैदियों को गार्ड की हिफाजत में बाहर निकाला गया। जिस बख्तरबंद कार में उन्हें बिठाया गया था उसके आगे और पीछे जर्मन फौज के 2 ट्रक उसकी हिफाजत के लिए चल रहे थे। मोसाद के डेथ स्क्वाड्रन का मकामी सरबराह हेमरख जानता था कि अगर उसने अपने काम में जरा सी कोताही का मुजाहरा किया तो ब्रिगेडियर शमीर उसे जिंदा दरगोर कर देगा। वो अपने एजेंटों की मामूली गलतियों पर उनकी सरजनिश करता था। अपने हाथ से एजेंटों को अजियतनाक सजाएं देना उसका मामूल था। दुनिया भर में फैले डेथ स्क्वाड के जाने कितने गैर यहूदी एजेंट उसके हाथों मौत का जायका चख चुके थे। किसी भी शख्स की जान लेना उसके नजदीक बच्चों का खेल था। बवेरिया जेल से हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क बज़ाहिर वीरान नजर आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि यहाँ चंद मिनट के नोटिस पर जर्मन अपनी मदद के लिए पुलिस या फौज को बुला सकते हैं। ब्रिगेडियर शमीर ने बड़ी सख्ती से हिदायत की थी कि दोनों कैदी किसी सूरत ब्लैक सितंबर के हाथों में न पहुंच सकें। उन्हें मारने का मंसूबा उन लोगों ने चंद घंटों में तैयार कर लिया था और अब यहाँ मोर्चा बंद होकर बैठे थे। इतनी इमरजेंसी और कम वक्त में हेमरिख को सिर्फ 6 एजेंट ही मयसर आ सके थे। इनमें भी 2 किराए के कातिल और 4 मोसाद के बाकायदा एजेंट थे। अपने 5 साथियों के साथ उसने जेल से उस तरफ आने वाले रास्ते के उस मोड़ को चुना था जिस पर एक छोटी सी सरसब्ज पहाड़ी में वो वक्ती तौर पर सड़क की तरफ से आने वालों की नजरों से छुप कर बैठे थे। इस जगह की निशानदही भी इन दोनों किराए के कातिलों में से एक ने की थी, जिसने बवेरिया जेल में 10 बरस कैद काटी थी और उसे अक्सर जर्मनी के दूसरे शहरों की अदालतों में पेश करने के लिए जेल से हवाई अड्डे तक ले जाया जाता। अपनी आंखों से दूरबीन लगाए वो कोहरे की चादर में आंखें फाड़ फाड़ कर गौहरे मकसूद तलाश कर रहा था। सर्दी की शिद्दत लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। इंतहाई गर्म जैकेटें पहनने के बावजूद उन्हें ठंडक अपनी हड्डियों में सरायत करती महसूस हो रही थी। ऑटोमेटिक बंदूकों पर गिरफ्त कायम रखने के लिए उन्होंने ऊनी दस्ताने पहन रखे थे और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ऊनी टोपियां ओढ़कर उन्हें अपने चेहरों पर इस तरह फैला लिया था कि अब चेहरे पर उनकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। हेमरिख को रह रह कर ये गम खा रहा था कि वो बजूका क्यों अपने हमरा नहीं ला सके। इसमें उसका भी
भी कसूर नहीं था। शमीर ने उन्हें वक्त ही इतना कम दिया था कि वो ढंग का असलहा भी नहीं ला सके थे। ऑटोमेटिक राइफलें और चंद हैंड ग्रेनेड या फिर एक लाइट मशीन गन जो हेमरिख ने खुद संभाल रखी थी। बिलाखिर उसे धुंध की चादर से झांकती जीप की रोशनियां भी दिखाई देने लगी। ये जीप शायद कमांड कार थी जो आगे आगे चल रही थी। उससे कुछ फासले पर आर्मर्ड कार आ रही थी जिसमें दोनों कैदी और उनके मुहाफिजों को बिठाया गया था। जीप उनके नजदीक पहुंची। हेमरिख की हिदायत के बिल्कुल बरक्स दोनों किराए के कातिलों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हेमरिख तिल मिलाकर उन्हें गालियां देने लगा क्योंकि उसने सख्ती से हिदायत की थी कि जब तक वो सिग्नल न दे फायरिंग न की जाए। लेकिन नौवारिद जिन्हें उसने हंगामी तौर पर एक मकामी सोर्स की मदद से हासिल किया था, अपनी आदत के हाथों मजबूर थे। उन्होंने पुलिस की जीप देखते ही उस पर गोलियों का मी बरसा दिया। ये कोई आम पुलिस नहीं थी। जर्मन पुलिस का खुसूसी तरबियत याफ्ता कमांडो यूनिट था जिसे हंगामी हालत से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। वो जानते थे कि मोसाद वाले उनके रास्ते में हर मुमकिन रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेंगे। गोलियां जीप में मौजूद एक कमांडो को जख्मी करने के अलावा और कोई काम अंजाम न दे पाईं। अगले ही लम्हे वो लोग मुकाबले पर डट गए। अगली जीप पर फायरिंग के साथ ही आर्मर्ड कार ने तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया, जबकि उसके पीछे आने वाली जीप बर्क रफ्तारी से एक लंबा चक्कर काटकर उस पहाड़ी टीले के पीछे पहुंच गई थी। हेमरिख को जल्द ही एहसास हो गया था कि वो घेरे में आ चुके हैं। उसने जान लिया था कि मुकाबला बेसूद है, लेकिन उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उन लोगों का घेराव तोड़कर निकल जाएं या फिर मारे जाएं। गिरफ्तारी की सूरत में वो जलील होकर मारे जाते। सबसे पहले तो उसने अपने हाथों से दोनों किराए के टट्टुओं को पलक झपकते में मार डाला। उसे खतरा था कि इनमें से अगर कोई जिंदा जर्मनों के हाथ लग गया तो वो सब कुछ बक देगा। उसके बाद उन लोगों ने पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी। अभी तक घेराव मुकम्मल नहीं हुआ था। चारों एक समत में बड़ी तरतीब से फायरिंग करते हुए भाग रहे थे जब उन्हें एक और आफत ने आन लिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर उनके सर पर मंडलाने लगा, जिसमें से एक गूंजदार आवाज उन्हें बार बार जर्मन और इंग्लिश जबान में हथियार फेंकने का हुक्म दे रही थी। जब वार्निंग पर भी उन्होंने मुकाबला जारी रखा तो हेलीकॉप्टर की तरफ से उन पर वार्निंग ब्रस्ट मारा गया। उसके साथ ही हेलीकॉप्टर ने आसमान से उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। चारों ने इस फायरिंग की जद से बचने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनका एक साथी हेलीकॉप्टर की फायरिंग और दूसरा पुलिस कमांडोज की गोलियों की भेंट चढ़ गया। अपनी तरबियत के मुताबिक अब हेमरिख के आखिरी साथी ने अपना मोर्चा वहां जमा लिया था और उसने हेमरिख को निकल जाने के लिए कहा। हेमरिख दीवाना वार भाग रहा था, जबकि उसका साथी अपनी जगह पर लेटा पुलिस की गोलियों का जवाब दे रहा था। हेलीकॉप्टर हेमरिख के ताकुब में उड़ रहा था और वो अपनी शानदार तरबियत के बलबूते पर उसकी गोलियों की इज्जत से हर मर्तबा छलांग लगाकर बच रहा था। 2-3 मिनट बहुत दलेरी से मुकाबला करने के बाद बिलाखिर उसका साथी भी मारा गया। हेमरिख की खुशकिस्मती थी कि धुंध अब इतनी गहरी हो गई थी कि जब तक वो नजदीकी दरख्तों के झुंड तक पहुंचा, हेलीकॉप्टर की दस्तरस से निकल गया था और फिर वो दरख्तों के झुंड के अंदर ही अंदर भागता चला गया। गहरी धुंध में तेज रोशनियां ज्यादा दूर तक उसका ताकुब न कर सकीं और वो आध घंटे की जानलेवा भाग दौड़ के बाद अकेला अपनी तबाही की दास्तान सुनाने के लिए जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। ये सूरत हाल उसके लिए नई नहीं थी। इससे पहले भी मुताद्दिद मर्तबा वो मौत के हाथों से बाल बाल बचा था। डेथ स्क्वाड का शायद ही कोई ऐसा खुशकिस्मत एजेंट था जिसने अपनी जिंदगी में ही मौत को बहुत करीब से न देखा हो। इन लोगों को बैक वक्त न सिर्फ इसराइल के दुश्मनों को मारना होता, उसके साथ साथ मुतल्लिका मुल्क में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से भी बचना होता था। दोनों ताकतों से बैक वक्त लड़ना होता था। लेकिन आज वो दिल शिकस्ता था। आज वाकई उन्हें जबरदस्त हजीमत का सामना हुआ था। फलस्तीनियों ने उन्हें एहसास दिला दिया था कि अपनी मक्कारी ताकत, दौलत और शैतानी ज़हनियत के बावजूद वो मजबूर हैं। अगले चंद घंटों के बाद वो तेल अवीव में ब्रिगेडियर शमीर को नाकामी की इत्तला देते हुए अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था, लेकिन ब्रिगेडियर शमीर ने उसका हौसला बढ़ाए रखा। वो जानता था कि एल्फ्रेड के बाद अब हेमरिख ही उसके पाए का एजेंट यूरोप में रह गया है। लुफ्तांसा एयरलाइन का जहाज अब जर्मनी के हुदूद में दाखिल हो चुका था। वो लोग उस वक्त रैम के फौजी अड्डे पर चक्कर लगा रहे थे, जिसके नीचे अमेरिका और जर्मनी के मुसल्ला फौजी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। जर्मनी की कोशिश थी कि किसी भी तरह जहाज जर्मनी में उतर जाए, लेकिन अबू अमल जैसे मजबूत आसाब के अरब नौजवान से उनका वास्ता शायद जिंदगी में पहली मर्तबा पड़ा था। उसने इस मसले पर गुफ्तगू करने से इनकार ही कर दिया था। जर्मन हुकाम उसे बार बार कह रहे थे कि
उसके साथी उनके पास मौजूद हैं और वो जर्मनी में जहाज उतार कर उन्हें हासिल कर लें, जिसके बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में उन्हें पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अबू अमल ने ये कहकर उनके अरमानों पर ओस डाल दी थी कि उसके साथियों को जहाज में सवार करके ज़ेग्रेब पर लाया जाए। उसके साथ ही उसने वॉल्टर क्लॉसन को दोबारा ज़ेग्रेब की तरफ जहाज ले जाने का हुक्म दिया। वॉल्टर क्लॉसन का पैमाना सबर बिलाखिर छलक पड़ा था। क्लेमेन, शायद तुम लोग इसे मेरी जिंदगी की आखिरी परवाज बनाने पर तुले हुए हो। मुझे अपनी जान का नहीं, इन सैकड़ों मुसाफिरों की जान का ख्याल है जिन्हें इस घटिया सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ से क्लेमेन ने जवाब दिया, मुतमईन रहो कैप्टन, मुझे तुम्हारी जिंदगी तमाम जिंदगियों से ज्यादा अजीज है। मैं अपने जहाज को किसी गंदी सियासत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। हम कैदियों को लेकर ज़ेग्रेब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही एक छोटा जहाज अली और उसके साथियों के साथ ज़ेग्रेब की तरफ महवे परवास था। इस जहाज में क्लेमेन और माइकल गॉड भी मौजूद थे। जर्मन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को अब भी यही उम्मीद थी कि वो आखिरी लम्हात में शायद सुरखरू हो जाए। 2 घंटे बाद ज़ेग्रेब के हवाई अड्डे पर दोनों जहाज लैंड कर चुके थे। वीआईपी लाउंज में अपनी आंखों से दूरबीन लगाए जर्मन काउंसलेट आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों कैदियों को उतरकर लुफ्थांसा एयरलाइन के जहाज की तरफ जाते देख रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि अपने साथ मौजूद जर्मन सफीर को कच्चा चबा जाए, जिसने उससे सीधे मुंह बात भी न की थी। माइकल गॉड की 1000 कोशिशों के बावजूद उन लोगों ने जहाज से बाहर आने से इनकार कर दिया था और दोनों साथियों को अपने ही जहाज में पहुंचाने पर मुसिर थे। बिलाखिर जर्मन इंटेलिजेंस डायरेक्टर को हथियार डालने पड़े और दोनों कैदियों को अबू अमल के हवाले करना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइन के चेयरमैन की तरफ से खुसूसी दरखास्त पर उन्होंने वॉल्टर क्लॉसन की जगह दूसरे पायलट को जहाज उड़ाने की इजाजत दे दी थी, जबकि वॉल्टर क्लॉसन के नायब ने जहाज से उतरने से इनकार कर दिया था। खुद वॉल्टर क्लॉसन भी बड़ी बददिली से अपने चेयरमैन का हुक्म मान रहा था, क्योंकि हर्बर्ट क्लेमेन समझा था कि अब वो मजीद फ्लाइंग कम से कम 1 हफ्ता नहीं कर सकता। उसने आसाब शिकन माहौल में 12 घंटे जहाज को मुसलसल हालत में परवाज में रखा था। ज़ेग्रेब से अबू अमल के हुक्म पर जहाज को किब्रिस और फिर बैरूत ले जाया जा रहा था। उन्होंने किब्रिस के हवाई अड्डे पर तमाम मुसाफिरों को उतार दिया था और अब सिर्फ जहाज के अमले के साथ महवे परवास थे। अबू अमल की जगह अब अली ने ले ली थी और वो फर्स्ट क्लास की आरामदेह सीटों के दरमियान एक चादर बिछाकर सजदा शुक्र अदा कर रहा था। बैरूत के खस्ता हाल हवाई अड्डे पर फलस्तीनी तहरीक आजादी के सिपाही उनके इस्तकबाल को मौजूद थे। जहाज के अमले को अपने जिलों में लिए वो लोग बैरूत की फौज की आंखों के सामने से गुजरकर अपने ट्रक तक आए थे। अपने इलाके में पहुंचकर उन्होंने जहाज के अमले को खुसूसी शुक्रिया और तहाइफ के साथ वापस भेज दिया। रात की तारीकी में अबू अमल अपने दोनों साथियों और जर्मनी से रिहाई पाने वालों के हमरा मकामी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। वो लोग जानते थे सुबह इसराइली तैयारों की तबाहकुन बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ऐन मुमकिन था कि मगरबी अफवाज की मदद से उन पर हमला भी किया जाता। रात के दूसरे पहर वो तेज रफ्तार कश्ती में सवार समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी मंजिल किब्रिस की बंदरगाह निकोसिया थी, जहां हमदर्द और महफूज हाथ उनको संभालने के लिए तैयार खड़े थे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।